There's breaking news coming in. BJP MLAs and leaders are expected to go to the Chief Minister's house where NDA meeting would take place. After the meeting, NDA MLAs and leaders are expected to go to the Raj Bhavan as well. That's the information coming in. The oath ceremony is expected to take place today itself. Let's go across to Akshay for more on this. Akshay, Prime Minister also congratulating Nitish Kumar at that particular meeting. He has resigned as the Chief Minister. Take us through what's expected next. Akshay, can you hear me? Take us through what's happening around you. Yeah, you can see the visual that Bijendra Yadav and Nitish Kumar have returned from the Governor House. They have submitted their resign, and Nitish Kumar is outside the CM's residence. You can see in the visuals that Nitish Kumar is outside CM's residence and is standing and is speaking to the media on the other side. You can see how the barricadings have been done and seeing the security. Such a deputation was done. CM Nitish Kumar and Bijendra Yadav, Minister of the Bihar government, have returned back to the 1 mark, and CM Nitish Kumar is speaking to the media. आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। अवसरवादी हैं भाई, हमने बता दिया कि हमको लगा करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया।
So that is Nitish Kumar, in fact, detailing what has transpired. In fact, very specifically also mentioning that he has taken the opinion of all and then has decided to end this particular government, and of course saying that you will see what is going to happen from here on. It's on the basis of opinion of others and his party members that he's taken this decision. Let's go across to Akshay Anand, who's reporting from on ground. There was present at this briefing of Nitish Kumar. No clear reasons, cogent reasons of why he is quitting the India alliance at this moment, but the first statement coming in from Nitish Kumar after his resignation there. Akshay. देश के पैदा हुआ खिलाड़ी हैं और इस शतरंज का चाल जानते हैं कि राजनीति में अगर जो शतरंज का चाल समझ गया वो समझिए कि दूरदृष्टि इस्तेमाल है। Yeah, he said that I worked for the India Alliance, but the parties of the India Alliance were not so fast and not were in a hurry. They were not working. He said that उन लोग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, इसीलिए हम उन लोग को छोड़ दिए. This is one reason, because JDU was always pressurizing the India Alliance to do the seat sharing on proper time, to make a coordination committee on proper time, to make a common minimum program before 31st December. You must remember that Nitish Kumar gave a deadline of 31st December, but till now also things are not clear. So seeing these things was a reason. The another reason was the overspoken leaders of the RJD who were continuously targeting the Sanatan Dharma, who were continuously targeting Nitish Kumar. MLC Sunil Singh was one after another posting. से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया. ऐसी नौबत क्यों आई सर? नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान. आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे. तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया. तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया. अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया. आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं. हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है. और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था. तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए. अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा. तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए. मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं. भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे. आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे. हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी. कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे. तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ. तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था. आप सबके लिखे अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा. हमने छोड़ दिया. All right, so that is Nitish Kumar detailing what has actually happened, why he has resigned as Chief Minister, talking about the takleef or the difficulty that he had, saying that the work that was to be done didn't really happen. And the latest, of course, is RJD's thank you to Tejaswi Bihar is waiting for you. We have Priya joining us for more on this. Yes, over to you, Priya.
Right, Madhav. Very interesting power play has been going on. On record, RJD has said nothing. All we heard yesterday was that Tejasvi Yadav has said that we respect Nitish Kumar, but today full-page ads were given out. First, we saw only Nitish ads, booklets, and attending events. Today, we saw an ad where only Tejasvi Yadav, I'm sorry, his face was there. It says "Dhanyavad Tejasvi," and just about 15 minutes ago, RJD's official handle tweeted, "आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे. धन्यवाद तेजस्वी यादव. बिहार आपका इंतजार कर रहा है." Now, what is this इंतजार for? Sources from RJD have said that Tejasvi has said that it will not be that easy to end the alliance this time around. खेल अभी बाकी है. He was playing on the खेला होबे tweet of Jitanram Manji. Is there something that is up RJD's sleeve? Are we in for a surprise up next? It will be very interesting to watch out for their game plan now. Well, absolutely. In fact, that's the latest coming in. Of course, also we understand that there's a reaction coming in as far as the Congress is concerned to all these developments of Nitish Kumar resigning as Chief Minister. In fact, RJD's "Thank you for Tejasvi, Bihar's waiting for you" statement is one reaction coming in. And now Congress has taken a dig at Nitish Kumar, saying Nitish Kumar Amar Rahe. Whether that is really an appropriate statement or not remains to be seen. But that's the latest coming in terms of the response of the Congress party to the developments taking place in Bihar is what we understand at this moment. खैर जा रहे हैं, जाने दो. हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे. तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे और हेली दो. अरे उसीलिए हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा. तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे. मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का. बिहार के पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन 23 जून को नीतीश कुमार जी ने 18 विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया था. पटना में बैठक हुई, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई, और तीनों बैठकों में नीतीश जी का बड़ा योगदान रहा. तो हम मानकर चल रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी की विचारधारा को हराने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे. अभी अगले 2-3 दिन में क्या होगा मैं क्या कह सकता हूँ. That's the reaction of the Congress party. Of course, Nitish Kumar has a very different version of what's exactly happened. But Priya, the first reaction of the Congress party on social media, I believe you have with you. Right, one can understand, Madhav, how heartbroken the Congress would be, but after having been dumped by Nitish, not only in Bihar, but also from all signs of it from the India Alliance, because this, remember, was the man we heard Jairam Ramesh saying was behind the first meeting that brought all the opposition parties on one table. Now, a jilted Congress has taken to sarcasm. Bihar Congress has put out the bites of Nitish Kumar on their Twitter handle. We'll play them out in a while for our viewers. They say नीतीश को कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने कहा था वो मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे. आज नीतीश कुमार अमर हो गए हैं. Basically saying that because he said that he would rather die than join the BJP, what happens after he joins the BJP? He becomes Amar now. All right, so that is, of course, a very significant aspect of what's happening there in Bihar. Those are the pictures of Nitish Kumar, in fact, tendering his resignation to the governor of Bihar, and the Raj Bhavan formally issuing a statement as well in this regard. Nitish Kumar now tendering his resignation. He's, of course, taken a jibe at the India Alliance as well. But there you see him on your screen with the Bihar governor tendering his resignation. Let's take this across to Mr. R. Rajgopalan, who's with us. Mr. Rajgopalan, while, in fact, Nitish Kumar has tendered his resignation to Rajendra Arlekar, governor of Bihar, he has made some very, very scathing comments, and clearly at some level or the other, while the Congress is... All right, I believe we have Mr. Shakti Yadav, RJD leader, joining us on the phone line. Mr. Shakti Yadav, क्या कहेंगे, क्या कारण है? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो काम होना था वो नहीं हुआ और उनको तकलीफ हो रही थी, इस वजह से उन्होंने छोड़ा. क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया अलायंस के लीडर शायद काम नहीं कर पा रहे थे जिस स्पीड में वो चाह रहे थे. आप एक संजीदा एंकर हैं. मैं पहली प्रतिक्रिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए यही है कि जहां हैं स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें. उन्हें जैसे निर्णय लिया था आने का और जिस तरह से निर्णय लिया उन्होंने जाने का,
सब चीज के गवाह देश की मीडिया भी है, एक एक जनता भी है। हम इनके पास सरकार बनाने के लिए गए नहीं थे, ये आए थे। सरकार में से ये जाने का निर्णय भी इन्हीं का है। इनको स्वस्थ रखे, इनकी जो हालात है स्वास्थ्य का, हम बेहतर स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। और हमने जिन असूलों और सिद्धांतों के तहत इतने 17 महीने में जो कमिटमेंट और हमारा जो था प्रतिज्ञा था तेजस्वी जी का, नौकरी के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर, गणना के सवाल पर, क्वालिटी एजुकेशन के सवाल पर, मानदेय में वृद्धि के सवाल पर, हमने एक एक पहलू पर काम किया। और हमने संजय का एक भी कारण मुख्यमंत्री जी नहीं गिरा रहे हैं तेजस्वी से अलग होने का। अगर एक कारण यह कारण है कि मुश्किल था काम करना, तो फिर आने की आवश्यकता नहीं थी। जब एक बार फिर आकर के आप चले गए थे तो फिर आते नहीं। तो ये सारे सवाल उन्हीं पर मैं छोड़ता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ, जो डर था भाजपा को बिहार को लेकर करके इस हिंदी पट्टी में, वो भाजपा भयभीत थी इंटरनल सर्वे से, लेकिन उनको उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली नीतीश कुमार जी को लेकर के इनको जाना है, आगे जाएं। और हमारी शुभकामना है नीतीश जी को कि आपने जो अपराध किया, पॉलिटिकल जो आपने अपराध किया है राजनीतिक रूप से, इसका जनता में आपको स्वयं ही पीपुल डोमेन में एक एक बात को कहना पड़ेगा। लेकिन आप मानते नहीं है कि इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है ये, क्योंकि एक तरफ आपकी ममता बनर्जी, आपकी अरविंद केजरीवाल के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरफ है, लेकिन अगर इस तरह नीतीश कुमार जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय इंडिया अलायंस छोड़ के एनडीए में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके काफी इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि बाकी सारे स्टेट्स में भी सीट शेयरिंग को लेकर, कन्वीनर को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पार्टियों के बीच में। जस्ट सेकेंड इंडिया अलायंस अगर इनको कोई महत्वपूर्ण पद दे देता, काम तो कर ही रहा था, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। एक सबसे बड़ा अनट्रस्टेड लीडर के रूप में अगर देश की राजनीति में किसी व्यक्ति के बारे में कोई कहा जाएगा, एक सवाल पूछा जाएगा, तो उनका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी होगा। कोई ऐसा दल नहीं है जिससे नीतीश कुमार जी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हटते हैं। इन्होंने कहा था कि 4 हमारे अनमोल रत्न के कहने पर हमने अलग हुआ, हम अलग महागठबंधन से हुए थे, और क्या क्या बातें तेजस्वी जी के लिए उन्होंने कहा। अब नीतीश जी की असहजता जिन कारणों से हो रहा था, जिस पर आपने ब्लेम किया था कि पार्टी को समाप्त करना चाह रही थी भाजपा, तो मैं आज आपको फोरकास्ट करता हूं कि जनता दल यू के बारे में कल लोग पढ़ेगा, वंस अपॉन ए टाइम, आप याद रखिएगा। All right, I'm going to request our guests who are with us. I'd like to thank you as well, Mr. Shakti Yadav, for joining us. Mr. Suman Kumar Malik, senior leader of the Congress, is also with us. We're going to come back to you as well as Mr. Rajgopalan. In fact, the pictures of Nitish Kumar tendering his resignation, the statements that he has made right after the tendering of the resignation, all of this are, of course, extremely controversial. We'll continue to report on all that. Please stay with us. Slipping into a quick break.